now today we are going to start with chapter number 10, electric circuit and its effect. In this chapter we will study about electricity. अपने आप में क्या एक form of energy है, ठीक है. तो हम इस पर electricity के बारे में पढ़ेंगे. Electricity is a form of energy, the flow of electricity through a conductor, जैसे कि metal wire. इसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट. जो भी एक वायर के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है उसे क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी इज यूजफुल बिकॉज इट कैन रन मेनी अप्लायंसेस व्हिच वर्क इजियर. जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, टेलीविजन, स्टीरियो सिस्टम, रेफ्रिजरेटर, फैंस, कूलर, एयर कंडीशनर, हीटिंग, इलेक्ट्रिक मिक्सचर, ग्राइंडर, गीजर, ऑल वर्क विद इलेक्ट्रिसिटी. ये सब किससे वर्क करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करते हैं. Electricity is produced at power station or power plant. From the power station, electricity is brought to our home. Power station से जो electricity है वायर के थ्रू हमारे इसमें आती है, मीटर बॉक्स में आती है. उसके बाद मीटर से हमारे घरों में जाती है. Electric circuit, a continuous conducting path of wires between two terminals of cell or battery along which electric current flows is called circuit. The flow of electric current is prevented in any case of break in the circuit. These are the source of electric current and a switch in the circuit. Closed circuit और complete circuit. सबसे पहले हम closed circuit पढ़ेंगे और closed circuit को क्या कहा जाता है? complete circuit कहा जाता है. The circuit from a source starts. भाई देखो किसी भी source से start हुआ है positive terminal से, ठीक है. positive terminal से start हुआ है और वो कहाँ जाएगा? बल्ब में. Electric current passes through a switch and through a gadget and ends at a negative terminal without any break. In a closed electric circuit, the current flow and the gadget start working. जैसे आप switch को on करोगे, current flow करेगा और जो आपका gadget है, चाहे वो बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, वो क्या करेगा? start working. वो work करना start करेगा. Open circuit और broken circuit. When the electric path is broken at some point or any other point, it is open circuit or incomplete circuit. ठीक है. वो अगर कहीं से भी ओपन होगा तो वो क्या होगा? इनकम्प्लीट सर्किट होगा. ठीक है. और जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा. नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स. एक स्विच होता है, सेल हो गई, बैटरी हो गई, कंडक्टिंग वायर्स हो गई, डिवाइसेस और अप्लायंसेस हो गई, वोल्टामीटर और एमीमीटर. Switch, as we know, current only flows through a closed circuit. If there is a break in the circuit, no current flow. अगर कहीं भी सर्किट में ब्रेक होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा. A switch is used to close and open a circuit. और स्विच हम इसलिए ही यूज करते हैं सर्किट को क्लोज करने के लिए और ओपन करने के लिए. When the switch is off, the circuit is open and no current flows. When the switch is on, जब स्विच ऑन है सर्किट क्लोज है और अलाउ करेगा करंट टू फ्लो. The cell or battery. A cell or battery is a source of electric current. It has a positive and negative terminal. A combination of 2 or 3 cells together is called battery. In most of appliances, more than one cell is needed. ज़्यादातर appliances में देखा होगा एक से ज़्यादा cell की need होती है for work. If we talk about conducting wire, a wire is made of conducting material required in a circuit. जो wire है वो conducting material का बना होता है जो किसमें required होता है? circuit में. It is joined for the flow of current in the circuit. It passes current very easily from one part of circuit to other. ठीक है. ये easily pass करता है करंट को एक सर्किट से दूसरे सर्किट. Devices or appliances. The appliance or a device that needs electric current is also attached to the circuits and it could be bulb or more. कुछ भी हो सकता है, मोटर भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है, फ्रीजर भी हो सकता है. Ammeter or voltmeter. An ammeter is attached to electric circuit to measure the amount of current flowing in the circuit. Whereas voltmeter is attached to a circuit and used for measuring the voltage. Voltmeter voltage measure करने के लिए यूज करा जाता है. ठीक है. Now conductor. Conductor क्या होते हैं? वो material और substances होते हैं जो allow करते हैं electricity to pass through them. They are able to conduct electricity because they allow electrons to flow inside them very easily. Conductor have this property of allowing the transition of heat or light from one source to another. इनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है जिससे ये ट्रांजिशन करता है हीट और लाइट का फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर. Metals, human, earth and animal bodies are all conductor. This is the reason you get electric shock. The main reason is that being a good conductor, human body allow
resistance free path for the current to flow from the wire to a board. वो flow करता है कहाँ से? From a wire to a board. Conductors have free electrons on its surface that allow current to pass through. This is the reason why conductor are able to conduct electricity. यही reason है जिसकी वजह से जो कंडक्टर है वो क्या कंडक्ट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. Now examples of conductor. Silver is the best conductor of electricity. However, it is costly and so you do not use silver in industries and transmission of electricity. दूसरा क्या है? कॉपर, ब्रास, स्टील और गोल्ड, एल्यूमिनियम. ये भी क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. मर्करी ये एक्सीलेंट एग्जाम्पल है तरीके का. ये लिक्विड कंडक्टर है. कैसा कंडक्टर है? लिक्विड कंडक्टर. गैसेज आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर क्वाइट फार. ठीक है. जो गैसेज आते होते हैं वो गुड कंडक्टर नहीं होते क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर. Now insulator. Insulator are the material or substances that resist or do not allow the current to flow. They are mostly solid in nature and finding use in variety of systems. They do not allow flow of heat as well as the property that makes insulator different from conductor. जो properties insulator को different करती है conductor से उसे क्या कहा जाता है? Resistivity. ठीक है. Now if we talk about wood, glass और cloth, ये किसके example है? Insulator. इंसुलेटर आर ऑल्सो प्रोटेक्टर एज दे गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट. इनको प्रोटेक्टर भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटेक्शन देता है किसके अगेंस्ट? हीट के अगेंस्ट. ठीक है. हेयर आर सम सिंबल्स इलेक्ट्रिक, जैसे सेल का है, ये बैटरी का है, बल्ब, कनेक्टेड वायर. ठीक है. कुछ सिंबल्स दिए हुए. नाउ एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर. ग्लास इज द बेस्ट इंसुलेटर. ग्लास क्या है? बेस्ट इंसुलेटर है एज इट हैज द हाईएस्ट रेजिस्टिविटी. जिसकी रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट. Plastic is a good insulator and it find its use in making a number of things. इसका यूज अलग अलग चीजों में करा जाता है. Rubber is a common component in making tires, fire resistant clothes and slippers. This is because it is a very good insulator. ये क्या होता है? बहुत ही अच्छा इंसुलेटर होता है. Potential difference की बात करते हैं. To make electric current flow continuously, you need a device that continuously flow current in same way to create a pressure difference. In electricity, this is known as potential difference. इसे क्या कहा जाता है? Potential difference कहा जाता है. इस एक डिवाइस है जो क्या करती है? जो फ्लो करंट कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है उसको सेम वे में क्रिएट करती है. जो SI यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट. और इसको किस में मेजर करा जाता है? वोल्टा मीटर में. A voltmeter is also a circuit element. An electric cell is in the battery is a device that makes the current move continuously in a wire by creating a potential difference. देखो voltmeter एक तरीके का circuit element है जो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है बैटरी में उसके थ्रू क्या करता है? डिवाइस को करंट को मूव करता है कंटिन्यूसली डिवाइस के अंदर. ठीक है. वन मार्क पॉजिटिव एंड अदर मार्क नेगेटिव. When these terminals are connected by metal wire, करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. करंट किससे फ्लो करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ. नाउ इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. देखो अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं. 3 इफेक्ट्स होते हैं. हीटिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है और केमिकल इफेक्ट होता है. ये 3 इफेक्ट्स पढ़ेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल इफेक्ट. ठीक है. जो केमिकल इफेक्ट्स होता है यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस. आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. हीटिंग इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उसमें क्या होता है? आपका जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है वो एक तरीके का खाली रेजिस्टेंस ही होता है. ठीक है. ऑल द मटेरियल अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू देम. सम अपोज लेस एंड सम अपोज मोर. द डिग्री टू विच अ मटेरियल अपोज पैसेज ऑफ करंट इटसेल्फ इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. जो डिग्री जिससे मटेरियल अपोज करता है क्या? पैसेज ऑफ करंट, उसको अपने आप में क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंस कहा जाता है. अगर हम कॉपर और एल्यूमिनियम की बात करें, इनका बहुत ही लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है. वहीं निक्रोम जिसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है. ठीक है. अ वायर मेड ऑफ मटेरियल हैविंग हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस वायर. निक्रोम वायर इज अ रेजिस्टेंट वायर. कीपिंग दिस पॉइंट्स इन माइंड वी विल नाउ डिस्क्राइब हीटिंग इफेक्ट. अब हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स पढ़ते हैं. व्हेन एन
इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, द रेजिस्टेंस वायर बिकम हॉट। देखो जब आप हाई रेजिस्टेंस वायर में इलेक्ट्रिसिटी को आप भेजेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहा जाता है। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। The amount of heat produced in a wire due to heating effect of current depends upon two factors. देखो दो फैक्टर पे डिपेंड होता है। फर्स्ट इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वायर। ठीक है, किस पे डिपेंड होता है? रेजिस्टेंस पे और मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होता है। ग्रेटर द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ग्रेटर विल बी द हीट प्रोड्यूस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वायर का उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। Copper has very low resistance, so if electric current is passed through a copper, then the heat produced in it will be extremely small. जो heat produce होगी वो क्या होगी? Extremely small होगी, छोटी होगी. To which copper wire will become negligible. Nichrome has very high resistance, so if the same electric current is passed through nichrome, the heat produced it will be too much. अगर high के साथ करोगे ज़्यादा high heat होगी, कम के साथ करोगे तो कम heat होगी. ठीक है? The elements of electric heating appliances become very hot and red hot on passing electric current because they have very high resistance. ठीक है, इनकी रेजिस्टेंस कैसी होती है? बहुत होती है। अगर शॉर्ट वायर होगा तो लेस रेजिस्टेंस होगी और लॉन्ग वायर होगा तो मोर रेजिस्टेंस होगी। अगर थिक वायर होगा तो रेजिस्टेंस कैसी होगी? कम होगी, और अगर थिन होगा, मोटा होगा तो रेजिस्टेंस कैसी होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पास थ्रू ग्रेटर विल बी द हीट। देखो मैंने दो फैक्टर्स बताए थे आपको। अब यहाँ क्या है? जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतनी ही क्या होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। दिस मीन्स दैट स्मॉल करंट पासिंग द वायर प्रोड्यूसेस लेस हीट बट द लार्ज करंट ऑफ सेम वायर प्रोड्यूसेस मच मोर। छोटा होगा तो कम और ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा होगी। नाउ एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज मेनी एप्लीकेशन। हम डेली लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। The heating effect of electric current is utilized in the working of electrical heating of appliance. Electric room heater, electric iron, electric kettle, electric toaster oven, water heater, immersion rod और soldering iron. ये सब किसके एग्जाम्पल है? आपके हीटिंग इफेक्ट। देखो आप इलेक्ट्रिक हीट, देखो सैंडविच बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक टोस्टर को रखते हैं, वो भी देखा ना आपने, हीट हो जाता है, जब भी तो पकता है वो, तो वो क्या है? हीटिंग इफेक्ट। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, और उससे क्या होता है? हम लाइट प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? लाइट प्रोड्यूस करते हैं। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन सेफ्टी डिवाइस, जैसे इलेक्ट्रिक फ्यूज, सेफ्टी डिवाइस में भी इनका यूज करा जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक आयरन। मिका इज एन इंसुलेटर दैट इज प्लेस्ड बिटवीन द मेटल पार्ट एंड कॉइल। मेटल पार्ट और कॉइल के बीच में आपका मिका एक ऐसा इंसुलेटर है जिसमें प्लेस करा जाता है। ठीक है, the coil become heated with the passage of current and transferred to metallic part of mica. और जो आपका नीचे का मेटालिक पार्ट होता है उसमें वो ट्रांसफर हो जाते हैं और देखते हैं, फिर आप इजीली प्रेस करते हैं तो वो भी जाते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब कंटेन्स थिक मेटालिक वायर मेड अप ऑफ टंगस्टन मेटल। द मेटल इज केप्ट इन इनर्ट एनवायरनमेंट विथ न्यूट्रल। व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द टंगस्टन वायर इट बिकम्स हीटेड एंड एमिट्स लाइट। जो टंगस्टन वायर है वो हीट हो जाता है, वो क्या एमिट करता है? लाइट एमिट करता है। Most of the power drawn in the circuit from the electric source is dissipated in a form of heat and rest is emitted in the form of light energy. और किसमें emit हो जाती है? In the form of light energy. Electric heater, in electric heater high resistant nichrome wire is used as coil. इसमें electric heater में nichrome का wire use करा जाता है। कैसा wire? nichrome. Now electric fuse. In any electric instrument due to sudden rise of current, the instrument gets burned down, which sometimes result in fire. A conducting wire with no melting point is connected in series with the circuit to avoid this type of accident. When the current rises, the wire melts due to excessive heat. जब करंट राइज करता है तो वायर मेल्ट करता है, और क्यों करता है? ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग की वजह से। Characteristics of fuse. A fuse is a safety device that limits the current in electric circuit. If the current in a circuit exceeds specified value, the fuse wire melts and breaks the circuit. जो फ्यूज के जो वायर हो जाते हैं और वो मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB। घर में लगी होती है ना, जिससे हम सर्किट को थोड़े टाइम के लिए बंद कर देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? MCB कहा जाता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर।
MCB stands for miniature circuit breaker. These days, MCBs are used increasingly in household electric wiring in place of traditional fuses. पहले fuses लगाए जाते थे, लेकिन अब किसका यूज करा जाता है? MCB. MCB does not work on heating effect of current. MCB works on magnetic effect of current. MCB is a special kind of electrical switch. This automatically turns off when the current in a circuit becomes too large and cuts off electric supply. ठीक है, जब बहुत ज्यादा लार्ज होता है तो सर्किट के लिए वो क्या हो जाता है? कट ऑफ हो जाता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई क्या हो जाती है? कट्स ऑफ हो जाती है. एमसीबी कैन बी रीसेट इन ऑन पोजीशन व्हेन फॉल्ट इन द वायरिंग हैज बीन सेट राइट. जब आपका जो फॉल्ट है वो सही हो जाए, आप उसको दोबारा से क्या कर सकते हैं? ऑन कर सकते हैं. ठीक है, द सेम एमसीबी कैन बी रीसेट मैनुअली टू इंस्टॉल इलेक्ट्रिक सप्लाई. When MCB is set reset, the circuit becomes complete and electric current starts flowing in the household wire. These days, more and more houses and other buildings are using MCB to protect electric wiring from excessive flow of current. जिससे ज़्यादा वायर ना हो, तो लोग किसका यूज़ कर रहे हैं? MCB का यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, और आपको अच्छी क्वालिटी की MCB दी चाहिए जो ISI मार्क से. Now, magnetic effects of electric current. We have just studied that electric current can produce heat. Now we will study that electric current can produce magnetism. When electric current passes through a wire, the current carrying wire behaves like magnet. This is known as magnetic effect of current. It is used to make many devices like electromagnets, electric bells, telephone instrument, electric fans, electric motors, loudspeaker and toys. This magnetic effect of current was discovered by Hans Christian. He found that when electric current was passed in a wire, the needle of a compass placed near it got deflected from its north-south position. ठीक है, जब उसको लाया गया तो अपने किसने बताया? हैंस क्रिस्टियन ऑरेस्टिस ने क्या इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर, मैग्नेटिक इफेक्ट को डिस्कवर करा. और ही फाउंड दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट वाज पास्ड, जब इलेक्ट्रिक. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. Pick the correct option. An electric bulb produces light by the magnetic effect, heating effect of current, या फिर chemical effect of current, and या mechanical effect of current. किसकी वजह से होता है? जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो किसकी वजह से होती है? आपकी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से होती है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेफ्टी डिवाइस. इसमें से आपको बताना है कौन सी डिवाइस सेफ्टी डिवाइस है. आपका इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक ओवन या इलेक्ट्रिक फ्यूज. इसमें से कौन सी सेफ्टी डिवाइस है? दैट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज. द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ. जो फिलामेंट होता है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब का, वो किससे बना होता है? थिन वायर से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? टंगस्टन कहते हैं. एंड इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब. जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको पास करा जाता है फिलामेंट ऑफ द बल्ब से. वो क्या देता है आपको? साउंड देता है, हीट देता है, मैग्नेटिज्म देता है या फिर लाइट देता है. हमें क्या देता है? हीट भी देता है और लाइट भी देता है. ठीक है, तो हम दोनों चीज लिखेंगे. तो आपका आंसर क्या होगा? सेकंड एंड फोर्थ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. इसमें से कौन सी चीज इलेक्ट्रोमैग्नेट का पार्ट नहीं है? गॉग, सॉफ्ट आयरन कॉर्ड, हैमर या फिर हीटिंग एलिमेंट. हैमर नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट इज Nichrochrome wire is used in hair dryer, HCFL, electric fuse या MCB. MCB में यूज करा जाता है. An electric fuse is used to prevent short circuit, overload या both on. A and B. The device that is used to prevent the flow of excess current, उसको क्या कहा जाता है? Switch कहा जाता है. Now fill in the blanks. The conducting path through the bulb, wire, switch and battery is called. जो conducting path है, जो किसके थ्रू? बल्ब, वायर और बैटरी को, इसको क्या कहा जाता है? द कंडक्टिंग पाथ थ्रू द बल्ब, वायर, स्विच एंड बैटरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सेल. ठीक है, लॉन्गर लाइन्स इन द सिंबल फॉर अ सेल रिप्रेजेंट इट्स पॉजिटिव टर्मिनल. द शॉर्ट एंड थिक लाइन इन द सिंबल ऑफ अ सेल रिप्रेजेंट इट्स नेगेटिव टर्मिनल. A combination of two or more cell, जो कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर सेल का, उसे क्या कहा जाता है? बैटरी कहा जाता है. When current is switched on in a room heater, the elements become heated.
द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन अ हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को क्या कहा जाता है? फ्यूज कहा जाता है। द मैग्नेट यूज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड, जो मैग्नेट यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूसेस डैश इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। A current carrying coil of an insulated wire wrapped around a piece of iron is called dash, क्या कहा जाता है? When a electric current passes through a coil wrapped around iron nail, the iron nail behaves like electromagnet. Next is state true or false. A current flowing through a conductor produces heat in the conductor. It's true. A thick copper wire can be used as a fuse wire in an electric fuse. Electric fuse works on the principle of magnetic effect of current. It's true. Electric bulb produce light by heating effect of current. Electromagnet can retain its magnetic power even after current passing through it is switched off. False. Electromagnet is a permanent temporary magnet. It's false. The combination of two or more cells. So क्या कहा जाता है? False. Battery कहा जाता है. In electric circuit, current flows from positive to negative. It's true. Now section B, answer in word 1. Name a device used to make a brick or a electric circuit. ठीक है, डिवाइस बतानी है. State any two effects produced by the electric current. तो इफेक्ट्स बताने हैं जो किससे प्रोड्यूस होते हैं? इलेक्ट्रिक करंट से. Which effect of electric current is utilized? Name the metal which is used to make filament of an electric bulb. मेटल बताना है जिसको यूज करा जाता है टू मेक अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब. विच इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CFL? आपको CFL की फुल फॉर्म बतानी है. विच इंपॉर्टेंट डिस्कवरी वाज मेड बाय ऑरेस्ट्रिक? ऑरेस्ट्रिक ने कौन सी डिस्कवरी करी थी? ऑफ विच मटेरियल इज द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूजुअली मेड? व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or 3 सेल्स कॉल्ड? कॉम्बिनेशन होता है 2 और 3 सेल्स को, उसे क्या कहा जाता है? शॉर्ट आंसर टाइप, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट? आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या. नेम 5 appliances in which electric circuits or cells are used. Explain the importance of using fuse. Importance बतानी है फ्यूज के यूज की. What is an open and closed circuit? What do you mean by heating and magnet? आपको heating और magnetic effect दोनों बताना. State 2 important uses of electromagnets. Why do we use iron for making electromagnet? Write about heating effect of electric current. आपको heating effect बताना है इलेक्ट्रिक करंट का. Draw a circuit diagram that include cell, bulb और closed switch. Long answer type question. What is electromagnet? Explain in your own words how to make an electromagnet and draw a label diagram. आपको एक label diagram बनाना है. Explain the construction of working of electric cell. Construction of working cell बताना है. What is electric fuse and how fuse helps to protect a circuit. Electric fuse क्या होता है और वो कैसे protect करता है. Mention 2 advantages of electromagnet over permanent magnet. What type of magnet is used in an electric bulb? किस तरीके की मैग्नेट यूज करी जाती है इलेक्ट्रिक बल्ब? आपको ये बताना. ठीक है. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.